جی دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے لیکچر میں جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کائنڈس آف سینٹنسز۔ سینٹنس کی اقسام کیا ہے؟ کتنی اقسام ہیں انگریزی زبان میں؟ یہ اقسام بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چیز کہوں گا کہ آپ غور کریں۔ آپ جب کچھ چیز بولتے ہیں یا کچھ چیز لکھتے ہیں، کوئی میسیج کسی کو کنوے کرتے ہیں یا کوئی چیز کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو آپ کی جو جملے ہوتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں، کس نیچر کے ہوتے ہیں؟ پہلے اگر آپ ان چیزوں کو ایک دفعہ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کو اسپلٹ کرنے میں۔ 5 اقسام جو ہیں انگریزی زبان کے سینٹنسز کی، اس کو اسپلٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ پہلا، آپ دیکھیں، جو بھی بات آپ کرتے ہیں وہ آپ یا تو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کوئی کوشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں، کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کوئی درخواست کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کو کسی چیز سے منع کر رہے ہوتے ہیں، اور یا آپ کوئی اپنی کوئی اسٹرانگ فیلنگ ہو یا ایموشنس کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، جذبات اپنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کے جتنے بھی جملے ہوتے ہیں، جو بھی اسٹیٹمنٹس آپ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ انہی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، انہی میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو جب ہم سینٹنسز کی اقسام کو سمجھنے کے لیے جب دیکھیں گے ان کو، تو وہ بھی اسی نوعیت کے جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے ہی گرد وہ اقسام ہوتی ہیں۔ کیسے؟ انگریزی زبان کی 5 اقسام ہیں، 5 kinds۔ انگریزی زبان کے سینٹنسز کی، سوری، ناٹ انگریزی زبان کی، انگریزی زبان کے سینٹنسز کی 5 اقسام۔ اب آپ دیکھیں کہ ان 5 اقسام کو میں بیان کروں گا 1 by 1، اور آپ دیکھیں گے کہ ساری اقسام ایک ایک کر کے ان میں سے یہ جو سچویشنس ہیں، یہ جو نیچر آف نریشن ہے، اس کے مطابق ہوں گی یا اس کے متعلق ہوں گی۔ پہلی قسم ہے assertive sentence۔ assertive sentence assertive sentence جب بھی کوئی چیز آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے assertive sentence۔ فرض کریں میں نے لکھا I write a letter۔ میں نے کہا میں خط لکھ رہا ہوں، یا میں نے کہا کہ I have taken breakfast۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ناشتہ لے لیا ہے، یا ناشتہ کر لیا ہے، یا کر چکا ہوں۔ پھر میں نے کہا he plays hockey، مطلب وہ ہاکی کھیلتا ہے۔ تو یہ میں نے اسٹیٹمنٹس دی، بیان کیے۔
कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे या बोलेंगे उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ आई डू नॉट राइट अ लेटर, पहले मैंने कहा आई राइट अ लेटर, फिर मैंने कहा आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं नहीं लिख रहा लेटर। या मैं कहूँ आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट की जगह मैंने लिखा आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। ही प्लेज हॉकी की जगह मैं कहता हूँ ही डज नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलता। तो ये कौन सी किस्म कहलाएगी? बात समझें। अगर स्टेटमेंट दी मैंने पॉजिटिव में, इसको भी मैं असर्टिव सेंटेंस ही कहूँगा। अगर एक स्टेटमेंट ही दी मैंने लेकिन वो नेगेटिव में दी, इनकारी नौयत की स्टेटमेंट मैंने लिखी, तो वो भी असर्टिव सेंटेंस ही कहलाएगी। ये दोनों असर्टिव सेंटेंस हैं, ये भी असर्टिव है क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, तो दोनों असर्टिव सेंटेंस ही कहलाए जाएंगे। फ़र्क कैसे मालूम हो? फ़र्क इस तरह से मालूम होगा कि असर्टिव सेंटेंस जो काइंड है सेंटेंसेस में से, 5 सेंटेंसेस की जो काइंड्स हैं उनमें से एक काइंड जो है वो असर्टिव सेंटेंस है। उसके अंदर 3 टाइप्स आते हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा एम्फेटिक। जब भी कोई स्टेटमेंट आप देंगे, कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, उसको आप असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस वो स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव में हो। नेगेटिव सेंटेंस वो है जो असर्टिव में नेगेटिव स्टेटमेंट्स देने के लिए इस्तेमाल हो। तो यहाँ क्या हुआ? ये तीनों अफर्मेटिव हुए और ये तीनों नेगेटिव हुए। नेगेटिव टाइप ऑफ द असर्टिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव टाइप ऑफ द असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं और ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इन असर्टिव सेंटेंस, दोनों असर्टिव सेंटेंस हैं लेकिन एक अफर्मेटिव टाइप है, एक नेगेटिव टाइप है। ठीक है जी। अब आप पूछेंगे ये जो थर्ड है एम्फेटिक सेंटेंस, ये किस लिए है? फिर मैं कहता हूँ कि आई डिड गो टू स्कूल। आपने मुझसे पूछा आप स्कूल गए थे? मैंने कहा बिल्कुल मैं स्कूल गया था, बिल्कुल यकीनी तौर पे गया था। तो मैंने ये कहा आई डिड गो टू स्कूल, मतलब मैंने ज़ोर दिया इस बात पे कि मैं बिल्कुल स्कूल गया था। तो ये आई डिड गो टू स्कूल, ये भी आपने एक स्टेटमेंट दी, लेकिन इसमें आपने ज़ोर दिया स्कूल जाने पर कि आप गए थे, तो ये एम्फेटिक सेंटेंस कहलाएगा, एम्फेटिक टाइप ऑफ द असर्टिव सेंटेंस कहलाएगी ये। इसी तरह एक और स्टेटमेंट आपने दी कि आई डू टेक एक्सरसाइजेस फॉर बेटर हेल्थ। आपने ये स्टेटमेंट दी।
आप ये भी तो कह सकते थे कि ये इसको काट के आप ये भी तो कह सकते थे कि आई टेक एक्सरसाइजेज फॉर बेटर हेल्थ। मैं एक्सरसाइजेज करता हूँ अच्छी सेहत के लिए। लेकिन जब आपने कहा आई डू टेक एक्सरसाइजेज फॉर बेटर हेल्थ, इसका मतलब आपने एक्सरसाइज करने पर जोर दिया। बिल्कुल यकीनी तौर पर, ज़रूरी तौर पर, कोई भी हालात हों, कैसे भी कंडीशंस हों, कैसी भी सिचुएशंस हों, आप एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव में। तो ये एम्फेटिक सेंटेंस कहलाएगा। एम्फेटिक सेंटेंस क्या हुआ? जो बात आप शब्द के साथ कहें, जो बात आप जोर देकर कहें, जो बात आप यकीनी तौर पर कहें, बिल्कुल के तौर पे कहें, इसको आप एम्फेटिक टाइप ऑफ द असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो हमने क्या, पहली किस्म क्या हुई? असर्टिव सेंटेंस। और उसके अंदर पहली टाइप अफर्मेटिव, दूसरी टाइप हुई नेगेटिव, और तीसरी टाइप हुई एम्फेटिक। और असर्टिव सेंटेंस किस लिए इस्तेमाल होता है? कौन से सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं? जिसमें हम स्टेटमेंट्स दें, किसी चीज़ को बयान करें। स्टेटमेंट्स या कोई चीज़ बयान करने के लिए आप अगर कोई जुमला बनाते हैं या लिखते हैं तो असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, जो स्टेटमेंट्स देने के लिए काम आए। ठीक है जी। दूसरी किस्म पे आ जाते हैं। दूसरी किस्म है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंसेस, अब देखें, पहली किस्म स्टेटमेंट्स की हो गई, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। दूसरी क्वेश्चंस। आप जब भी बात करते हैं या तो आप स्टेटमेंट देते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें जो भी स्टेटमेंट आप देते हैं, जो भी आप बात करते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, टू आस्क क्वेश्चंस, इसके लिए जो भी आप जुमला अदा करेंगे उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल में हम कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम। हम पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरह दूसरा, अगर मैं कहूँ आपसे, फ़र्ज़ करें मैंने कहा कि डिड यू posted the letter yesterday। तो ये क्या हुआ कि मैंने पूछा, आपने लेटर पोस्ट कर दिया था कल। तो मैंने आपसे मतलब पूछा, जब पूछा तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है जी। दो एग्ज़ाम हमने अभी पढ़ ली। अब तीसरी एग्ज़ाम पे आ जाते हैं। याद रखिए कि ये एक स्टेटमेंट हो गया, दूसरा ये क्वेश्चन हो गया। अब आप जब भी बोलते हैं तो एक आप कभी कभी हुक्म भी दे रहे होते हैं, कभी नसीहत भी कर रहे होते हैं। अब हम तीसरी किस्म पे आ जाते हैं। तीसरी किस्म है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें आप कोई कमांड दे रहे हों, कोई हुक्म दे रहे हों, या आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों, दरख्वास्त दे रहे हों, गुजारिश कर रहे हों, या आप कोई नसीहत कर रहे हों, एडवाइस कर रहे हों, या किसी को किसी चीज़ से रोक रहे हों। इस तरह के चार सिचुएशंस पे जो भी आप बात करेंगे, जो भी जुमला आप बनाएंगे, उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब आप एक एक करके इनका एक जुमला बना लेते हैं। कमांड के लिए मैंने आपको कहा ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। मैंने हुक्म दिया कि आप मेरे लिए एक कप चाय लाएं। रिक्वेस्ट के लिए मैं कहता हूँ
would you please lend me your camera or your book? ये हुआ, ये रिक्वेस्ट की मैंने कि आप क्या मुझे आप अपनी कैमरा देंगे, थोड़ी देर के लिए मुझे आप दे सकते हैं अपनी कैमरा। तीसरा, एडवाइस के लिए, जैसे मैंने अपने छोटे बेटे को कहा ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, इसका मतलब है कि हमेशा सच बोलो, ये मैंने उसको नसीहत की। तो जो इंग्लिश में मैंने सेंटेंस बनाया इसको हम क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। फिर मैंने किसी चीज़ से किसी को रोका, जैसे डू नॉट टेल अ लाई, इसका मतलब मैंने उसको झूठ बोलने से रोका। जब मैंने उसको झूठ बोलने से रोका, उसको जब मैंने इंग्लिश में लिखा या कहा तो वो हुआ डू नॉट टेल अ लाई। तो ये किसी चीज़ से मना किया जा रहा है, इसका मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है जी, यहाँ तक हम आ गए। अब आती है चौथी किस्म। चौथी किस्म सेंटेंसेस की कौन सी होती है? होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है? जो एक्सप्रेस करे किस चीज़ को? किस चीज़ को? स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, फीलिंग्स को। आप अपने जज्बात बयान कर रहे हो तो उसको हम अंग्रेज़ी ज़बान में ऐसे सारे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हाउ रूड यू वर, कितने रूड थे आप, कितने रूड थे। ठीक है जी। और जैसे अल्लाह वी लॉस्ट द मैच, हमने मैच हारा, उसका बड़ा अफसोस है, अफसोस हुआ। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाया जाएगा। जैसे हाउ फुलिश आई हैव बीन, इसका मतलब हुआ मैं कितना पागल हो चुका था। ठीक है जी। तो ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब आपने एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस का इजहार किया कि मैं पागल हो चुका था, या कितने आप रूड थे, या मैंने दुख का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया कि मैं मैच हार गया। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस होंगे उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एंड पे ये निशान आपने देना होता है। कौन सा निशान? ये निशान, ये निशान। और ये जो अल्लास है या हुर्रा, खुशी के लिए हम यूज़ करते हैं, इनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। और इंटरजेक्शंस हम आने वाले लेक्चर्स में हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बयान करूँगा। इनके बाद भी आपने ये निशान देना होता है, ये वाला निशान, इंटरजेक्शंस के बाद भी और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में भी। इसी तरह मैं बताना भूल गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने आखिर में सेंटेंस के एंड पे ये मार्क ज़रूर देना है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और असर्टिव सेंटेंस जब भी एंड होगा तो उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। ठीक है जी। यहाँ तक हम आ गए। अब पांचवी किस्म जो अंग्रेज़ी ज़बान में सेंटेंसेस की है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये किस लिए होता है? ये एक्सप्रेस करे, जो भी सेंटेंस एक्सप्रेस करे या डिनोट करे या बयान करे, क्या? विश, ख्वाहिश का इजहार करे, तो उससे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने आपको दुआ दी, मे यू लिव लॉन्ग, तो इसके आखिर में भी ये भी याद रखिएगा
ऑप्टेटिव सेंटेंस के आखिर में भी आपने ये एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर देना है, ये वाला, ठीक है जी। मे यू लिव लॉन्ग, ये मेरी विश है कि आप को लंबी उम्र मिले। या फिर वुड दैट आई वर रिच, अगर ये मैं कहता हूँ कि मतलब रिच होना हर किसी की ख्वाहिश है कि वो अमीर हो, तो मैं ये कह विश कर रहा हूँ कि क्या ही बात होती कि मैं अमीर होता, रिच होता। तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहलाया जाएगा। तो ये हमारे 5 इकसाम थी। पहली किस्म असर्टिव सेंटेंस, वो स्टेटमेंट देने के लिए होगी, कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या एम्फेटिक हो, ठीक है जी। दूसरी किस्म हुई इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चंस पूछने के लिए होगी। तीसरी है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कोई कमांड कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, कोई एडवाइस करने के लिए, किसी चीज़ से मना करने के लिए जो स्टेटमेंट आप देंगे या लिखेंगे उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चौथी है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप जो भी कहेंगे या लिखेंगे और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ज़िम्रे में आएगा। फिर है जी ऑप्टेटिव, लास्ट वन, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये विश को एक्सप्रेस करने के लिए है, कोई ख्वाहिश को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अब आप देखें ये सारी सिचुएशंस कवर हो गई इन 5 एग्ज़ाम में जो पहले मैंने आपको बयान की थी। ये सिचुएशंस होती हैं जब भी आप बोलते हैं, इन्हीं सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन होती है जिसको आप बयान कर रहे होते हैं। तो वो हमने 5 एग्ज़ाम में उनको कर दिया। अब आपको मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा, इन 5 एग्ज़ाम के अलावा कोई और किस्म नहीं है इंग्लिश में सेंटेंसेस की। तो आप याद रखिए, जैसे आप अपने दोस्तों को जानते पहचानते हैं, रिलेटिव्स को जानते पहचानते हैं, उसी तरह आपने इन 5 एग्ज़ाम को अच्छी तरह जान लेना है और समझ लेना है, क्योंकि आने वाले वक्त में जितनी भी आप ग्रामेटिकल रूल्स को पढ़ेंगे उसमें ऐसी ही सेंटेंसेस आपके सामने आएंगी। थैंक यू वेरी मच।